ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پنجاب بھر میں ڈینگی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیمیں متحرک ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے رانا عقیل کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وائرس سے اب تک پاکستان بھر میں کئی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس وقت پنجاب کے تمام بڑے شہروں جس میں لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، قصور، اٹک، مظفر گڑھ، سیالکوٹ، سہیوال، نارووال، بہاولپور، گجرات، چکوال اور اکاڑا میں بھی ڈینگی تیزی سے پھیل چکا ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ڈینگی کی نئی لہر میں اب تک صوبہ بھر میں ہزاروں نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਡੇਂਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ اور ਅਸੀਂ بڑے مطمئن ہیں۔ ماہرین کے مطابق ڈینگی پھیلنے کی بڑی وجہ کھلے آسمان تلے صاف پانی ہے اور جس کی احتیاطی تدابیر بھی انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر اعجاز احمد بٹ، ایم ایس کوٹ خواجہ سید ٹیچنگ ہسپتال کا کہنا تھا کہ ڈینگی پھیلنے کی بڑی وجہ بارش کا پانی کھڑا ہونا ہے۔ ڈینگی بخار جو ہے یہ ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ اس علاقے میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پھیل رہا ہے اور عام روٹین سے پچھلے سالوں کی نسبت تھوڑے سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ مین جو وجہ ہے وہ لوگوں کا حفاظتی تدابیر نہ کرنا ہے۔ حفاظتی تدابیر میں یہی ہے کہ تازہ پانی کہیں پہ کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ سب سے بڑی چیز وہ یہی ہے۔ ڈینگی کی علامات ظاہر ہونے پر فوراً مریض کو قریبی ہاسپٹل سے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ بخار اور اس دوسری علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کی تو پھر مریض جو ہے نا اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ فوری طور پہ اپنا ڈاکٹر کو معائنہ کروائیں اور ڈینگی کے ٹیسٹ کروائیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر میڈیکل پنجاب ڈاکٹر محمد اعظم کا کہنا تھا کہ پورے پنجاب کے تمام ہاسپٹلز میں ڈینگی وارڈز قائم کر دی گئی ہیں جہاں تمام ٹرینڈ عملہ مکمل میڈیسن کے ساتھ دستیاب ہے۔ ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے CDC جو اس کو دیکھتا ہے اور اس میں ہماری انڈور سرویلنس، ایکسٹرنل سرویلنس یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، بلکہ پچھلے لاسٹ 4 منتھ سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہاسپٹلز میں ڈیڈیکیٹڈ وارڈ بنا دیے گئے ڈینگی کے لیے جس میں جو کہ ویل ایکوپڈ ہے، میڈیسن ساری 100% اویلیبل ہے اور جتنا بھی عملہ ہے وہ سارے کا سارا ویل ٹرینڈ ہے۔ محکمہ صحت پنجاب نے شہریوں کے لیے ڈینگی بخار کے علاج، معلومات یا شکایات کے لیے ہیلپ لائن 1033 قائم کر دی ہے جہاں سٹاف 24 گھنٹے رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ ڈینگی کے پیشنٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب، محکمہ صحت اور ضلعی انتظامیہ اس کو کنٹرول کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ کیمرامین محمد بابر کے ساتھ رانا عقیل، میٹرو ون نیوز، لاہور۔ صادق آباد بیگڑ گڑھی میں ناشتے کے بعد 6 افراد کی حالت خراب ہو گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے تمام افراد کو طبی امداد فراہم کر کے اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں رانا محبوب کی اس رپورٹ میں۔ ناشتہ کرتے ہوئے بیگڑ گڑھی صادق آباد کے 6 افراد کی حالت غیر ہو گئی جنہیں ریسکیو 1122 کے عملے نے فوری طبی امداد دے کر THQ ہسپتال صادق آباد منتقل کر دیا جہاں پر ان کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ بیگڑ گڑھی صادق آباد گھر کے 6 افراد نے صبح چائے پی۔ چائے کے پینے سے تمام افراد کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ افراد کی تفصیل: شرم خاتون، نینا بی بی، آسیہ بی بی اور 3 بچے ثانیہ بی بی، نادیہ بی بی، نور ثنا بی بی شامل ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو ون نیوز، صادق آباد۔ خیرپور میں IBA ٹیسٹ پاس کرنے والے نوجوانوں نے نوکریاں نہ ملنے کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دے کر میرٹ کا علامتی جنازہ بھی نکالا۔ احتجاجی دھرنے کی قیادت شائستہ بلوچ، دریا خان، شیخ اظہر ابڑو، زمان کھڑو، واہب مستوی، صلاح الدین چنا، الہدا جن، سلیمان کھوڑو، مہران بھمبر، وقار جاگرانی، قلندر بخشر، شاہنواز چنا اور فرمان راجہ نے کی۔ شرکا نے دھرنا دینے کے دوران نوکریاں دو ذہنی اذیتوں سے بچاؤ، سندھ حکومت کے پڑے گی
तो सिंध तो बढ़ेगा। सिंध के नारे लगाए और भरम रखो और दीगर नारे बुलंद किए। धरने में शरीक नौजवानों का कहना था कि सिंध भर में असातिज़ा की कमी के बाइस सैकड़ों स्कूल बंद पड़े हैं। नौकरियां देकर बंद स्कूल खुलवाए जाएं। उनका मजीद कहना था कि बच्चों को तालीम से महरूम करने की साजिश के तहत नए असातिज़ा भर्ती नहीं किए जा रहे। म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला में बेज़ाब्तियाँ ना रुक सकीं। अफसरान के इमा पर मुलाजमीन दफ्तर में आए ना साइलिन को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद। जी बताइएगा। जी, म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला में बेज़ाब्तियाँ ना रुक सकी। गवर्नमेंट की फीसेज ना होने के बावजूद अफसरान के इमा पर मुलाजमीन दफ्तर में आए साइलिन को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। म्यूनसिपल कमेटी में रिश्वत के बगैर किसी साइल का काम होना इंतहाई मुश्किल हो गया है। माजूरी का सर्टिफिकेट लेने आए माजूर को भी ना बख्शा गया। मैं अपना मजूरी का कार्ड बनवाना सी ते मैं दफ्तर गया कमेटी दे, ठीक है। उत्थे मैनू मियाँ वेद साहब का मुलाजम एक कमेटी का वो मिलिया। की नाम से मुलाजम दा? मियाँ वेद। अच्छा जी, ठीक है जी। वो मुलाजम कमेटी का मिलिया मैनू, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कि तुसी रुपया दिओ 10,000, ठीक है, तुहाडा मैं कार्ड भी बना देना तो तुहानू इत्थे मुलाजमत मिलवा देना, ठीक है। लेकिन सीओ के ऑफिस के बाहर बैठते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो वो है, अब शायद उनका भी तबादला ना हो गया हो, ठीक है ना। तो पहले सीओ के दफ्तर के बाहर बैठते थे, ठीक है। तो आप क्या अपील करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से यही अपील करता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा कार्ड बना के दिया जाए और इस बंदे से मेरे पैसे लेके दिए जाए और कानून के मुताबिक जो उनसे भी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ वो की जाए। मुतासरा गरीब की अरबाब इख्तियार से अपील है कि इसे माजूरी का सर्टिफिकेट बनवा कर दिया जाए। कमेटी में छुपे करप्ट अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर करार वाकई सजा दिलवाई जाए ताकि शरीफ शहरी करप्शन की भीड़ चढ़ने से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही बिहाड़ी शहर में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियों का आगाज़ हो गया है। रबीउल अव्वल के हवाले से रैली निकाली हुई है जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हजूर की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। पूरे पाकिस्तान की तरह आज बिहाड़ी शहर में भी रैलियां और जुलूस निकाले जा रहे हैं और खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारे साथ कारी नवीद साहब हैं, इसी हवाले से इनसे जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल के हवाले से ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा करोड़ एहसान कि जिसने हमें माह रबीउल अव्वल जैसा अजीम शान महीना अता किया। और मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सिर्फ पैगाम देना चाहता हूँ कि जश्न इस तरह मनाए कि हमारे आका का हम पर करम हो जाए और इस अंदाज से और इस मोहब्बत से अपनाएं कि लोग हमें देख के देखें, देखो मुस्तफ़ा के नौकर फिर रहे हैं। जी, कारी नवीद साहब का यही कहना है कि उम्मत मुस्लिमा के जो पैगाम है मैं इस तरह देना चाहता हूँ कि जो जितने मुसलमान भी हैं ये इस तरह हम विलादत के दिन मनाएं ताकि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पे करम हो जाए और हमें दिल सुकून मिले। रबीउल अव्वल की आमद के सिलसिले में चौक मलिकवाला में उलमा इकराम और अंजुमन ताजरान की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, तफसीलात क्या हैं आपके पास। आका की आमद मरहबा मरहबा। इस वक्त मौजूद हूँ चौक मलिकवाला में। यहाँ पर आज माह रबीउन नूर के मौका पर आज इब्तिदा है इस्लामी मूवमेंट की और कायनात के नबी सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन के वलादत व शहादत के दिन के हवाले से यहाँ पर परचम कुशाई की गई है। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इसरारुल बहार शाह साहब जो सदर हैं बैनुल मज़हब अमन कमेटी के। उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इस हवाले से उनका क्या पैगाम है और वो मुसलमान इस्लाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जैसा कि आपने फरमाया कि आज मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ हो चुका है, तो अल्लाह पाक का ये करोड़ा मुसलमानों पर एहसान है कि उसने एक अजीम रसूल हमें अता फरमाए जिनकी ग़ुलामी में हम अपनी ज़िंदगी बसर फरमा रहे हैं। और यकीनन ये सारे महीनों और सारी नेमतों से बड़ी नेमत हुजूर की आमद है जो अल्लाह ने हमें ये बार बार मौका ज़िंदगी में नसीब फरमाया
کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آج یہاں حاضر ہیں، اور اس میں میری جماعت کے مقتدر علماء کرام مختصر وقت میں تشریف لائے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کا ایمانی قلبی فریضہ ہے کہ وہ اس نعمت عظمیٰ پر اپنے رب کے حضور جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور کی برکتیں نصیب فرمائی، اور میں اس مبارک ایونٹ پر یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ کریم تو اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں حضور کا سچا امتی بنا دے، ہماری باقی زندگی جو ہے وہ اتباع رسول اور محبت رسول کے اندر صرف ہو، اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ اس میلاد کی برکت سے امن کا گہوارہ فرما دے، اور ہمارے اندر اخلاق اور اخلاص کی نعمت اور محبت عطا فرما دے۔ جی سنا ناظرین، آپ نے سید اسرار البہار شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ اس مہینے کی برکت سے ہمارے اندر جو ہے تازہ ایمان اقتدار پیدا فرمائے، اور اللہ پاک وحدہ لا شریک جو ہے تمام اتباع رسول پر مسلمانوں کو کامزد کرے۔ یکجا ہونے کی انہوں نے دعا کی ہے۔ ڈاکٹر عبدالشکور گجر، میٹرو 1 نیوز، گوجرا۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے رینجرز نے خفیہ اطلاع پر کشمور میں کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی میں شہر میں تیل کے خفیہ ڈپو پر رینجرز نے کامیاب کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران 18,000 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد کیا گیا ہے۔ کارروائی میں ایک ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ رینجرز نے برآمد شدہ ایرانی ڈیزل کسٹم حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ ایرانی ڈیزل کسٹم آفس سکھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاک پتن میں ایپکا تنظیم کی جانب سے انچارج اینٹی کرپشن سرکل ندیم اقبال کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ ضلع تنظیم ایپکا کی جانب سے انچارج اینٹی کرپشن ندیم اقبال کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی کرنے پر ضلع صدر ایپکا محمد عدیق بت، محمد مہر سئی، مہر مصطفیٰ، اعجاز خان، سید قیصر کمال شاہ، محمد امجد علی بھٹی، شہباز بھٹی اور صحافی ایوب چاولہ نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی ندیم اقبال کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ منچن آباد تحصیل نگرہ دعوت اسلامی محمد ندیم سرور اتاری دعوت اسلامی شعبہ ایف جی آر کے تحت دریا ستلج کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کیمپ لگایا گیا اور متاثرین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ دعوت اسلامی نے تقریباً 49 گھرانوں میں راشن تقسیم کیا۔ متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے تحصیل نگرہ نے کہا، یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو ہمیں اس نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے سنت ادا کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے سہاروں کو سہارا بن کر آئے ہیں، ہم بھی اللہ کے محبوب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اہلیان علاقہ نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ کشمیر میں 15 روز قبل اغوا ہونے والے مغوی مزدور نوجوان ظہیر خالدی کی بازیابی کے لیے ڈاکو نے تاوان طلب کر لیا ہے۔ ڈاکو نے مغوی ورثہ کو فون کال کر کے مغوی کی رہائی کے لیے 30 لاکھ روپے تاوان طلب کیا۔ مغوی کے ورثہ کا کہنا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، تاوان کہاں سے دیں، ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں، تاوان کہاں سے دیں گے۔ ایس ایس پی کشمیر، ڈی آئی جی لاڑکانہ اور آئی جی سے نوٹس لے کر ہمارا بچہ بازیاب کروا دیں۔ مغوی ظہیر خالدی سبزی منڈی میں مزدوری کرتا تھا۔ کچے کے ڈاکو بلا کام ہو گئے۔ تھانہ سٹی کبیروالا کے شہری اعجاز کو اغوا کر کے 10 لاکھ روپے تاوان مانگ لیا ہے، جہاں پر تھانہ سٹی کبیروالا کے شہر کے رہائشی اعجاز احمد کو نوکری کا جھانسا دے کر ملتان بلا کر کچے کے ڈاکو نے اغوا کر لیا اور اعجاز کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ کچے کے ڈاکو نے مغوی کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے جس میں اعجاز کو تشدد کا نشانہ بنا کر انصاف کی بھی اپیل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اب 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، جبکہ اعجاز احمد کی بیوی کا کہنا ہے، میرے خاوند نوکری کی غرض سے ملتان کا کہہ کر گئے تھے۔ اعجاز احمد کے اہل خانہ نے گزارش کی ہے کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اعجاز احمد کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے۔ تھانہ صدر پتوکی کے علاقے میں لڑکا اور لڑکی کو نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا ہے۔ زہرا بیوی کو 3 نامعلوم ملزمان نے اغوا کیا اور فرار ہو گئے۔ صدر پتوکی 18 سالہ زہرا گھر سے دکان سودا سلف لینے کے لیے گئی تو راستے میں کھڑے ملزمان نے اغوا کر لیا۔ 17 سالہ محمد فیضان گھر سے بازار کھانا لینے گیا جو واپس نہ پہنچا۔ تھانہ صدر پتوکی پولیس نے دونوں واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کر کے مغویان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ وزیر آباد میں نجی کالج کے باہر فائرنگ سے ایک نوجوان جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق نواحی گاؤں
दायां वाली के रिहायशी के बाबर तूर को निजी कॉलेज के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जबकि उसके हमरा कदीर नामी नौजवान को गर्दन में गोली लगी है, जिसे सिविल अस्पताल वजीराबाद इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया है। पुलिस थाने सदर मसरूफ़ तफ्तीश है। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक और ज़ख्मी नौजवानों का ताल्लुक कॉलेज से है। कॉलेज के बाहर फायरिंग को आज मुसलसल तीसरा रोज़ है, जबकि एक माह के दौरान कमोबेश इसी इलाके में हवाई फायरिंग के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते ब्रेक के बाद देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर देंगे आपको टोबाटेक सिंह से, जहां पर खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरफ्तारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत भी हमरा थे। गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा करने वाले 1000 खाद के बैग बरामद करके होर्डिंग एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए बैग दुकान और गोदाम में ज़ख़ीरा किए गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने रोजाना 4 दुकानों को सील कर दिया। मालिकान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर 3 खाद डीलर्स के खिलाफ FIRs का इंदराज। ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर खादों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़ायद कीमत वसूल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं है। डिप्टी कमिश्नर किसान का इस्तेसाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शकरगढ़ में तहसील इंतजामिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ब्लैक में खाद फरोख्त करने पर ताजिर को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया है। शकरगढ़ में नाला नई पुल पर स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर खाद से भरे 2 ट्रक पकड़ लिए। AC शकरगढ़ खजर ज़हूर कुराया के मुताबिक खाद की 550 बोरियां बरामद होने पर ताजिर को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ खजर ज़हूर कुराया ने खाद को कब्जे में लेकर सरकारी निर्खों में किसानों में तकसीम कर दिया। AC शकरगढ़ का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद जारी रहेगा। खानेवाल में पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेजी से जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब की वाज़ेह हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फ़रूक की हदायत पर SHO थाना सिटी अरसान अमजद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज़ी से जारी है, जिस पर 48 घंटों में जो है वो लाखों मालियत की जो है मंशियात पकड़ी है। तो बात कर ले SHO थाना सिटी अरसान अमजद बताएगा आपने 48 घंटों में कितने मुलजिमान गिरफ्तार किए और कितने मंशियात पकड़ी आपने? जी बिल्कुल, हमने लास्ट 48 आवर्स में तकरीबन 5 से 6 मंशियात फ़रोश पकड़े, जिनमें बदनाम ज़माना मंशियात फ़रोश सिब्बा ओड और उसके अलावा सफदर उर्फ पप्पू शामिल हैं। सफदर उर्फ पप्पू पे हमने अभी मंशियात का पर्चा दिया है और इस पे जो लीगल प्रोसीडिंग्स है सारी कर रहे हैं। DPO साहब की इसके बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि खानेवाल सिटी को हमने मंशियात फ़रोशों से पाक करना है और इंशाल्लाह हम इस अज़म को जो है लेके आगे चल रहे हैं और खानेवाल की आवाम को इंशाल्लाह मंशियात फ्री सिटी प्रोवाइड करेंगे। सही बताएगा सफदर उर्फ पप्पू पे ये जो है कि पूरी फैमिली जो है वो मंशियात है, कौन कौन से इसमें कमल कर देंगे? सफदर उर्फ पप्पू की पूरी फैमिली इस मंशियात के मकरू धंधे में मुलव्वस है। सफदर उर्फ पप्पू की जो बीवी है उस पर भी हमने उससे रिकवरी की है मंशियात की, वो भी अभी डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल में बंद है। उसका जो उसकी बहू है उस पर भी हमने मंशियात की कार्रवाई की है, उससे भी बरामदगी हुई थी। और इसके अलावा इसका बेटा जो है वो भी इस मंशियात जैसे मकरू धंधे में मुलव्वस है, जिसके खिलाफ भी हम मज़ीद कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, SHO अरसान अमजद का ये कहना था कि DPO खानेवाल की हदायत पर जो मंशियात फरोश के खिलाफ है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। जहलम की आवाम ने निगरां हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। जहलम से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान कादरी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। इस माह में दूसरी मरतबा पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। लोग पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। गुज़श्ता रात निगरां हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये और 2 पैसे जबकि डीज़ल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का बड़ा इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से एशिया खुर्दोनोश की कीमतों समेत गुड ट्रांसपोर्टर के किरायों के अलावा मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में भी बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। इस हवाला से जेहलम के शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है।
गैस बिजली के बिल अदा करने से हम लोग कासर हैं। अगर पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ना की गई तो नौबत खुदकुशियों तक पहुंच जाएगी। जेलम की आवाम ने हुक्मरानों से अपील की है कि खुदारा रोज़मर्रा के इस्तेमाल शुदा अशिया खुदोनोश की कीमतों में कमी के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जल्द से जल्द कमी लाई जाए ताकि आवाम दो वक्त की रोटी आसानी से खा सके। जी। महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम पर एक दफ़ा फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से रावण के शहरी इंतहाई परेशान है। मजीद जानते रावण से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। जी मलिक कैसर अमीन, आगाह कीजिएगा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक दफा फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफा फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 332 रुपए 38 पैसे हो गई है, जिसकी वजह से जो रायवंड के जो शहरी हैं वो भी इंतहाई परेशान है। मजीद हम रायवंड के शहरियों से जानते हैं इस हवाले से। देखो 40,000 रुपया या 30,000 रुपया या 26,000 लैने वाला बंदा अगर पल्लियों पेट्रोल पवा सकता है, साढ़े जेह्ड़े वड्डे वड्डे मुलाजमीन ने, सरकारी अफसरान ने, वो क्यों नहीं पवा सकते? अब पिछली दफा तुसीं देखिया 15 दिन पहले 10-11 रुपये वधे है, हुण 26 रुपये फिर वधे है। 331 रुपये का अगर असीं पेट्रोल पवा के फैक्ट्री जावांगे तो असीं अपने बच्चों को की खवावांगे? देखो ना कि साडे नाल ना इंसाफी है, ज्यादती है। ये बस सानू हुण मारना ही चाहते हैं, और असीं कुछ भी नहीं कर सकते। ये अल्लाह ही है जिहड़ा निज़ाम चलाई जा रहा है, इन्हां दे वास्ते होवे तो सानू मार ही देन। मैं रक्षा ड्राइवर हाँ जी, रिक्शा चलाना दिहाड़ी ते लिया 700 रुपया दिहाड़ी भी देना वा, 350 रुपये 332 रुपये पेट्रोल हो गया है। पेट्रोल पूरा करिए, बत्ती का बिल पूरा करिए, 6,000 रुपये आटा लैके खा रहे हैं, 200 रुपये चीनी लैके खा रहे हैं, बहुत परेशान हाँ। साडी कोई इंतजा है कि साडा कोई गरीबां दा सोचा जाए, असीं बहुत परेशान हाँ। हुकूमत नाल साडी गुजारिश है कि पेट्रोल कोई आटा चीनी सस्ता किया जाए। इन्नी महंगाई हुई थी, 25,000 रुपया घर का किराया और तनख्वाह हैगी तो 25,000 रुपया उधर बत्ती का बिल दे देंगे ने। आटे का तोड़ा लिया 1350 रुपये का ये दिता है, चीनी 200 रुपये किलो हुई पी है, पेट्रोल वेख लो 300 रुपये लीटर होया पिया। माड़ा बंदा तो उंज ही मार गया। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि हम पहले महंगाई की वजह से परेशान हैं, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी परेशानी है उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। मजीद शहरियों का यही कहना है कि हमारी निगरान हुकूमत से अपील है कि खुदारा हम पर रहम किया जाए और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जी। कैरोड़ पक्का में बल्दिया अमला शहर भर की सफाई सुथराई करके शहर का कचरा दुनियापुर रोड के करीब रेलवे फाटक पर डाल देते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन खान रिंद अहले मोहल्ला के हमरा मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैरोड़ पक्का दुनियापुर रोड के करीब रेलवे फाटक के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है बल्दिया अमला ने बेहिसी की इंतहा कर दी है। शहर भर का जो कचरा है वो इकट्ठा करके इसी जगह पर फेंक दिया जाता है। यहाँ के इलाका मुकीन जो है वो इस वक्त शदीद जो है बरहम है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए इलाका मुकीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाईजान बताइएगा, यहाँ पर बल्दिया अमला कचरा डालते तो क्या कहना चाहेंगे? हम जी हाँ जी, हमने मना किया है जी, रोका है, रुकते नहीं है। और उसके बाद सफाई होनी चाहिए, बहुत बदबू ही है, कचरा है, साथ अल्लाह का घर है, मस्जिद है, नमाजी हजरात तंग होते हैं, इतनी बदबू ही है, बैठा नहीं जाता। हमने रोका है, बहुत तंग होते हैं, इसे तंग करते हैं अमला बल्कि अमला वाले। नहीं हम इधर डालेंगे ना, हमने मना किया, मेहरबानी करें प्लीज़ भाई, नमाजी हजरात तंग होते हैं, बदबू होती है, कहीं किसी और जगह डाल के दो। नहीं, हमारी मानते नहीं है, मेहरबानी करिए, सफाई होने चाहिए। और आपका बहुत शुक्रिया होगा अफीसरा का, और नई मीडिया वाले भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, वो इस वक्त शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यहाँ के शहरियों ने जो है हुकूमत वक्त के ऐवानों और असिस्टेंट कमिश्नर कैरोड़ पक्का से मुतालबा किया है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और इस कचरे को जो है यहाँ से उठवा कर शहर से कहीं बाहर फेंकवाया जाए। जी। खानका डोगरा में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में मुतादिद बिजली चोरों को डायरेक्ट बिजली चलाते तारों समेत पकड़ लिया गया है। एसडीओ वाबडा फारूक, चेयरमैन वाबडा बख्तियार भट्टी, मीटर इंस्पेक्टर साजिद भट्टी ने पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। मुतादिद अफराद को बिजली चोरी में धर लिया है। वाबडा की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ लाखों रुपए डिटेंशन बिल डालकर मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं। एसडीओ वाबडा मोहम्मद फारूक ने बताया कि चीफ लेस्को पंजाब SE शेखुपुरा और एक्स फारूकाबाद की खुसूसी हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिजली चोरी कौमी जुर्म है, इनको किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी।
हेस्को हैदराबाद टीम ने मीरपुर खास हेस्को टीम के हमरा सैटेलाइट टाउन और दीगर इलाकों में बिजली कुंडा सिस्टम और बकायाजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। दर्जनों कनेक्शन मुनक़ता कर दिए, लाखों रुपए जुर्माने आयद कर दिए हैं। ऑपरेशन में चीफ इंजीनियर रमेश, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सुहेल शेख, एक्सिन मीरपुर खास वसीम कोराई समेत दीगर अफसरान ने इस सिलसिले में 20 बनाई जाने वाली टीमों का गलियों, बैंगलोज और मार्केट्स में कुंडा कनेक्शन के साथ बकायाजात पर भरपूर ऑपरेशन किया। सुबह से शुरू होने वाले ऑपरेशन रात 10 बजे तक जारी रहेगा। वापडा हेस्को हैदराबाद टीम इंचार्ज का कहना था कि आज से सीईओ की हिदायत पर ऑपरेशन का आगाज किया है, जो पूरे डिवीजन में जारी रहेगा और कुंडा माफिया और चोरी करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सिंध राना हमीर सिंह सोडो ने कानितों के करीब चंदे पैरोका पर हाजिरी दी। इस मौके पर हिंदू मजहब के अकीदेमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। हर साल की तरह इस साल भी कानितों के करीब चंदे पीर के आस्थाने पर एक रोज़ा मेले का एहतमाम किया गया। साबिक रुकन सिंध असम्बली राना हमीर सिंह सोडो ने आरती और पूजा करके तकरीबात का आगाज़ किया। मेले में सिंध भर से हिंदू यात्रियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मेला इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए खाने पीने और रिहाइश का एहतमाम किया गया। ओबाड़ो के नवाही इलाके गोट बोड़ी के रिहायशी मोहम्मद हुसैन ने बासर अफराद के खिलाफ ओबाड़ो मीडिया सेंटर पर एहतजाज किया है। मोहम्मद हुसैन सोलंगी का कहना था कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 10 साल है मस्जिद में पढ़ने जाती है, हक नवाज रास्ते में तंग करता है। बच्ची ने अपने घर बताया तो गुलाम हैदर सोलंगी, मेहरदीन सोलंगी, साजिद अली सोलंगी, नज़ाकत अली सोलंगी ने लड़की के घर वालों पर धावा बोल दिया और संगीन नताइज की धमकियां दी। लड़की के वालिद मोहम्मद हुसैन सोलंगी का कहना था कि हमने ओबाड़ो थाने में शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारी एसएसपी घोटकी, डीआईजी सक्खर, चीफ जस्टिस सिंध से पुरजोर अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मुलजिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। समुद्री थाना सिटी के हुदूद में रजाना रोड पर चोर निजी होलसेल पॉइंट से लाखों रुपए मालियत का घी चोरी कर गए और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज भी मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली है। समुद्री में चोरी और डकैती राहज़ानी का सिलसिला जारी है। आज भी चोर अलसुब निजी होलसेल पॉइंट्स के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का घी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि चोर किस तरफ और किस तरह बिलाखौफ व खतर गोदाम से घी उठाकर गाड़ी में लोड कर रहे हैं। कुछ रोज कबल भी डाकू गन पॉइंट पर मेन कचहरी बाजार से दुकानदार से तकरीबन 30 लाख नकदी मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए थे, जबकि इसकी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई थी, लेकिन पुलिस इन डाकुओं को भी पकड़ने में ताहाल नाकाम है। गंबट में चीनी और दीगर अशिया बड़ी तादाद में स्टॉक होने लगे हैं। गंबट में इंतजामिया और मुनाफिकखोरों की मिली भगत से हजारों बोरी चीनी स्टॉक की गई है। चीनी की सैकड़ों बोरियां एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा रही हैं। वीडियो मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली है, लेकिन मुनाफिकखोर और स्टॉक होल्डर्स के खिलाफ इंतजामी कार्रवाई से कासिर है। सहाफ़ियों के वेलफेयर के लिए इंटरनेशनल प्रेस क्लब में सियालकोट के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोटली लोहारा के चेयरमैन और अरकान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रिजवान ताहिर एडवोकेट ने कहा कि सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि तमाम सहाफ़ी बाहम इत्तेफाक और मोहब्बत से मिलकर आगे चलें ताकि सहाफ़त की ताकत में इजाफा हो। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद आसिफ जट फलोरान ने हाजरीन से खिताब करते हुए इंटरनेशनल प्रेस क्लब सियालकोट रजिस्टर्ड सहाफ़त के वसी तर मफाद के लिए बताया कि इजलास इस वक्त इस बात का इयादा भी किया है कि इलाकाई मसाइल को उजागर करने के लिए बिला खौफ व ख़तर खबरों में शाया किया जाएगा ताकि इंतज़ामिया हर वक्त मसाइल का हल निकाल सके। इजलास में रिजवान ताहिर एडवोकेट, कामरान सलहेरी, मलिक अरशद बिल्ला, चौधरी फ़हीम और दीगर ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल आने वाले हर मरीज को स्लोगन हम के तहत सर्विस डिलीवरी की बेहतरीन
طریقے سے خدمات دی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر خانوال وسیم حامد صندوق کا مریضوں کی سہولت کے لیے پرچی، مریض کے معائنے، میڈیسن فراہمی دورانیے میں کمی کا حکم، طبی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے DHQ اسپتال OPD کا تفصیلی معائنہ بھی کیا، مریضوں سے دستیاب سہولیات اور ڈاکٹرز کے رویے کے بارے میں استفسار کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر احمد نوید بلوچ، MS ڈاکٹر عمارہ، ایڈمن آفیسر اسفن کھکلا ہمراہ موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے فارمیسی میں ادویات کی فراہمی، OPD میں آنے والے ہر مریض کو انتظار کرانے کے بجائے جلد از جلد سہولت فراہم کرنے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر عملہ مریضوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال میں مریضوں کا رش اور اس پر سہولیت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جامشورو کوٹری میں حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کوٹری فلائی روڈ پر لوڈر ڈرائیور 50 سالہ سمار جی نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے انتقال کر گیا۔ پولیس نے اطلاع ملنے پر ناش سول اسپتال منتقل کی۔ مقتول رحیم یار خان کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ قومی شاہراہ ٹھٹا پر ٹرک کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار 20 سالہ اسد علی فوت ہو گیا، جبکہ حنیف چانڈیو زخمی ہو گیا۔ لاش اور زخمی کو سول اسپتال کوٹری لایا گیا تھا۔ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ احمد پور سیال کے علاقے بستی سمیجہ آباد موزہ گوٹ مپال میں غریب مستحق بچیوں کے لیے سلائی کڑھائی سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ نجی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام موزہ کوٹ مپال میں سلائی کڑھائی سینٹر کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کا افتتاح صاحبزادہ ڈاکٹر کاشف سلطان نے کیا۔ تقریب میں ضلع جنگ کے تمام فلاحی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اسد فردوسی نے افتتاحی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستحق خواتین کو مفت سلائی کڑھائی مشینیں دے کر روزگار کے قابل بنائیں گے۔ فیصل آباد میں بارش کی گرمی کا زور ٹوٹ گیا تو وہیں دوسری جانب واسا نااہلی سے فیصل آباد کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ارسلان سلیم سے۔ جی ارسلان سلیم، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، فیصل آباد میں بارش کے بعد فیصل آباد کا موسم جو ہے بہت ہی خوشگوار اور ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ کالے بادلوں نے جو وہ ڈیرے جما لیے ہیں، رم جم کی برسات بھی جو برس رہی ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ سڑکوں پر جو واسا کی نااہلی کی وجہ سے پانی بھی جمع ہے۔ شہریوں کو آنے جانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ جس طرح کہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ پانی جمع ہے اور شہریوں کو آنے جانے میں بہت سی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ تو شہریوں کی واسا سے اپیل ہے کہ پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جائے تاکہ شہریوں کو آنے جانے میں جو وہ آسانی ہو سکے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز کی نشاندہی پر کسٹم انٹیلیجنس نے رائے ون کے علاقے میں پلاٹ میں چھاپہ مار کر لاکھ روپے مالیت کی نان کسٹم سامان کو قبضے میں لے لیا ہے، جبکہ گودام کے مالک مرزا عدنان اور عمر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس خبر کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف حافظ سعید ابو ذر سے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی بالکل، اس وقت ہم رائیونڈ روڈ اڈا پلاٹ کے نزدیک موجود ہیں۔ یہاں پہ میٹرو ون نیوز چینل کی نشاندہی پر کسٹم انٹیلیجنس نے مشترکہ ایک چھاپہ مارا ہے، اور جہاں سے جو ایلومینیم فائل اور دیگر جو ہے امپورٹ شدہ جو چیزیں جو کہ لیگل طریقے سے آنی تھی وہ کہ نان کسٹم، یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گودام یہاں پہ موجود ہے جو کہ لاکھوں روپے مالیت کا جو یہاں پہ جو سامان ہے، جو ایلومینیم فائل ہے وہ یہاں پہ برآمد کر لیں۔ یہاں پہ میرے ساتھ کسٹم انٹیلیجنس سے سہیل مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کارروائی ہوئی اور یہاں سے کیا چیز ہے۔ جی سہیل صاحب بتائیے گا۔ السلام علیکم جی، ہم لوگوں نے یہاں انفارمیشن پر جو ہے ریڈ کیا ہے، اس میں یہ ایلومینیم فائل ہے، یہ نان کسٹم ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل جس طرح حالات چل رہے ہیں کہ اسمگلنگ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہم اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کافی حد تک کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور مزید بھی آگے دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کے جو بھی محرکات ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ پورا کریک ڈاؤن کریں گے۔ جی آپ یہاں پہ جو لوگ آپ کو کوئی ریسٹ بھی ہوئے ہیں؟ یہ اپنا ان کے جو مالکان ہے اس کو ہم نے اپنا بٹھا لیا ہے، اریسٹ کر لیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے مزید انویسٹیگیشن کریں گے۔ ان سے ڈاکومنٹس وغیرہ مانگ رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو اس کی مزید انویسٹیگیشن کر کے اور اس کے خلاف جو ہے پرچہ ہم دیں گے۔
जी बिल्कुल, सुहेल मुर्तज़ा साहब का यही कहना है कि यहाँ पे जब छापा मारा गया और यहाँ पे लाखों रुपए मालियत का जिसको एल्यूमिनियम फॉइल कहा जाता है, जो कि नॉन कस्टम है, यहाँ पे उनको जो कस्टम इंटेलिजेंस है उन्होंने अपनी तहवील में ले रही है। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसको लोड किया जा रहा है एक मसले में, और यहाँ पे एक हैवी मशीनरी भी है जिसको भी जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस जो है वो अपनी तहवील में लेंगे। और इसी तरह पूरे मुल्क में जिस तरीके से स्मगलिंग का जो कारोबार है, जो स्मगलिंग हो रही है, जो मुल्क में नॉन कस्टम चीज़ें जो आ रही हैं, वो कस्टम जो एहलकारान हैं और कस्टम का जो डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और सुहेल मुर्तज़ा साहब का भी यही कहना है कि मज़ीद इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इनके जो भी पीछे मुहर्रिकात हैं उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी यूरनेस्ट ने पाकिस्तान में भी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। तकरीब में ऑस्ट्रेलिया की मशहूर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनियों की नुमाइश की गई। कराची के निजी होटल में मुनक़िदा तकरीब की मेज़बानी यूरनेस्ट की ग्रुप के बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शान जैदी ने की। तकरीब में ऑस्ट्रेलिया की मशहूर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनियों की नुमाइश की गई, जिनमें कैसल ग्रुप, EG फंड्स, नारो एस्ट मैनेजमेंट फंड्स और 5 अप्रैल शामिल थे। तकरीब में यूरनेस्ट पाकिस्तान के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शफीक मौसवी और चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ैन कुरैशी का तारुफ भी करवाया गया। तकरीब में वज़ीर तालीम M.A. कुरैशी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर अब्दुल्ला हुसैन हारून और बिजनेस वुमेन सुल्ताना सिद्दीकी ने शिरकत की। हमारे दोस्तों का एक ग्रुप है जिनमें पाकिस्तानी निज़ात लोग हैं, और उनका अब यानी कि कुछ मैंने उनको ये इस ख्याल पर लाया हूँ कि भाई जब आप अब एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और दूसरे मुल्कों में जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारी माना जन्मभूमि है, यहाँ हम पैदा हुए हैं, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। हम यहाँ पे अपना बैक एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस का दफ्तर बनाने आए। मैं और जैन दोनों पाकिस्तानी हैं, ओरिजिनली दोनों कराची से हैं, और एमिली जो है हमारे लिए काम करती हैं ऑस्ट्रेलिया में, और हम उनको साथ लेके आए बिकॉज शी इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग टुडे फॉर द सेरेमनी। वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, बट हम रियल स्टेट में हैं, हम लैंड डेवलपर्स हैं, हम फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी रन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जिस तरह से हम लोगों ने अपने बिजनेसेस को डेवलप किया है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे मुल्कों में भी जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपना बैक ऑफिस, जहाँ पर हमारी सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं, वो हम यहाँ बनाना चाहते हैं। और लाहौर में एक ऑफिस ऑलरेडी है, कराची में हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है हम और शहरों में भी जाएं। तो हमारा आइडिया ये है कि जी यहाँ पर भी बहुत टैलेंट है, एम्प्लॉयमेंट लेके, और हम उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लाना चाहते हैं और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अपनी यहाँ शेयर करना चाहते हैं। Very much for coming and thank you for having us. I'm very excited about tonight and speaking a little bit more about the work that we're doing here. फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।